Talking about the subject matter of Bhagavad Gita, and as we already discussed that Bhagavad Gita has four paths of liberation, four major paths of liberation. Can you name them? Everybody. First one is Bhakti, Gyan, Dhyan, Karma. But the sequence is Gyan Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga and Dhyan Yoga. Though there are mixtures of these four also in some places, like in the second chapter there is Gyan Yoga and Karma Yoga at the same time, at the same place, and in fifth chapter there is Gyan Yoga and Karma Yoga again. So there is a mixture. In the first five chapters there is a mixture of Gyan Yoga and Karma Yoga, and in sixth chapter there is Dhyan Yoga, and after seventh chapter there is Bhakti Yoga. Bhakti Yoga starts from the seventh chapter. So I just want all of you to somehow remember the script of Bhagavad Gita. I mean the sequence of Bhagavad Gita. So very quickly we will take the concept of Gyan Yoga from the second chapter. As you all know, Arjuna is deluded. Arjuna is attached to his own family members. He saw Bhishma Pitamaha, Guru Dronacharya in front of him in the battlefield, and he says that I cannot kill my own family members, my guru, my grandfather, my relatives. So I don't feel like fighting this war because they will all die. And what is the use of having a state, having a property, having the Rajya? अगर मेरे अपने ही जो जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ अगर वो ही नहीं रहेंगे तो मैं ये सब चीज़ें करके क्या करूँगा, लाइफ का क्या ही मीनिंग है फिर। तो उसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण उसको सेकंड चैप्टर के शुरुआत में ही कहते हैं, अशोच्यानन व शोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। You grieve over those who should not be grieved for, and yet speak like the learned. Wise men do not sorrow over the dead or the living. People may come, people may go, man may come, man may go, but mankind shall go on forever. It is a saying, very famous saying. So people take birth and people die. So it doesn't affect the stability or the mentality of a wise man. So wise men do not lament over somebody's departure. So they do their duty, they do their work. So you should be aware of the ultimate reality which lies within you. कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बहुत लोग जन्म लेते हैं इस दुनिया में, रोज नए बच्चे पैदा हो रहे हैं और रोज बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं। तो ये तो संसार का क्रम है। दिस इज द साइकिल ऑफ संसारा, दिस इज द साइकिल ऑफ दिस वर्ल्ड। सो वाइज मैन डू नॉट बॉदर अबाउट इट, दे जस्ट डू देयर ओन ड्यूटी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्ञान योगा। We can take very important shlokas from second chapter. न त्वेवा हम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम. There was never a time when I was not, or when you or these kings were not, nor is it a fact that hereafter we shall all cease to be. कभी भी ऐसा टाइम कभी भी नहीं आया कि ये सब लोग पहले नहीं थे। भीष्म और द्रोण और ये सब लोग जो सामने दिखाई दे रहे हैं कि पहले नहीं थे और अब हैं और फिर नहीं होंगे। ये पहले भी थे, आज हैं, फिर आगे भी होंगे। दैट मीन्स ही इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मन, कि आत्मा जो है, सोल जो है, वो इम्पेरिशेबल है और वो कभी भी मरती नहीं है। पहले भी थी, वो आगे भी रहेगी, हमेशा रहेगी। और ये जो लोग जिनके मरने का तुम्हें लगता है कि मर जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। दुनिया किसी की वजह से नहीं रुकती। तो इन बुद्धिमान व्यक्ति वो है, समझदार आदमी वो है जो अपना काम ठीक ढंग से करता है। मरना जीना किसी के हाथ में नहीं है। बहुत बार हमारी अपनी खुद की लाइफ में भी ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम बहुत अटैच होते हैं अपने साथ वालों के साथ, कि मैं चला तो जाऊं किसी और चीज़ में, लेकिन मेरा इन लोगों से साथ छूट जाएगा, मेरे फैमिली से, मेरी
पति पत्नी, भाई बहन, या कोई फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, तो उस वजह से हम अपने जो हमारी ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य पथ है, उसको हम नहीं करते, हम राइचुअसनेस को छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट। सो भगवान कृष्ण इज कन्विंसिंग अर्जुना दैट अटैचमेंट में आके अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ना है। कहते देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। अरे पगले, अर्जुन को कह रहे हो कि जैसे कोई बच्चा होता है छोटा, फिर वो बड़ा होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, ऐसे ही मर जाता है किसी दिन। तो जैसे ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सारी चीजें भी नेचुरल हैं, ऐसे ही डेथ भी नेचुरल है। किसी इंसान का मरना जीना ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, ये तो चलता रहता दुनिया में। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब तक तुम जिंदा हो, तुमने वो काम किया या नहीं जो तुम्हें करना चाहिए था, जिसके लिए तुम कैपेबल थे, जो तुम्हारी पोटेंशियल थी, जो तुम्हारी पोटेंशियल थी, क्या तुमने उसको जिया, क्या तुमने उसको किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट एज बॉयहुड, यूथ एंड ओल्ड एज आर एट्रीब्यूटेड टू द सोल थ्रू दिस बॉडी, even so it attains another body. This the wise man does not get deluded about this कि जैसे आत्मा जो है वो बचपन, जवानी, बुढ़ापा के बाद आत्मा शरीर छोड़ के दूसरे नए बॉडी में एंटर कर जाती है, नया उसका लाइफ शुरू हो जाता है। दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ भगवद गीता। ओके, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पायिनो अनित्यांस्तान तितिक्षस्व भारत। ओ सन ऑफ कुंती, द कॉन्टेक्ट्स बिटवीन द सेंसेस एंड देयर ऑब्जेक्ट्स, the contexts between the senses and their objects which give rise to the feelings of heat and cold, pleasure and pain, etc. are transitory and fleeting. Therefore Arjuna, endure them. जो दुनिया में सुख दुख होते हैं ना, कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें खराब लगती हैं, किसी चीज़ में बहुत मन लगता है, किसी चीज़ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ट्रांजिएंट है, बहुत फ्लीटिंग है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं नहीं करूँगा। जैसे आप में से ही कुछ लोगों को मैंने कहा कि अगर शांति से बैठना है, प्रॉपरली बैठना है तो बैठो, नहीं तो जा सकते हैं। तो कुछ महारथी चले भी जाते हैं कि ठीक है निकल जाते हैं, क्योंकि उतनी देर बैठना भी मुश्किल लगता है उन्हें। अगर पूछा जाए, देखा जाए कि जिस काम के लिए तुम यहाँ पर आए हो, ये तो उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। वो अंडरस्टैंडिंग, वो विजन आपका बनना चाहिए ना। बीइंग अ ग्रेजुएट ऑफ साइकोलॉजी, यू शुड बी अवेयर, you should be knowledged of all the subjects, of all the topics which are relevant to you, which are relevant to your books, to your studies. But still it is very difficult for some people to stay calmly and to listen what is being said. तो क्योंकि हम क्या होता है, हम अटैच रहते हैं कि अच्छी लगती है चीज़ें तो करते हैं, थोड़ा मुश्किल लगता है तो नहीं करते हैं। बिस्तर पे लेटा रहना आसान लगता है, और कोई कहे मम्मी पापा आपके बोले सुबह उठो बेटा, थोड़ा रनिंग किया करो, थोड़ा खेल लिया करो, थोड़ा जल्दी उठ जाओ, थोड़ा सा वर्कआउट करो, थोड़ा जिम कर लो, उसमें तो मन नहीं लगता, मुश्किल है बहुत, कौन करेगा। हेल्दी फूड खाने के लिए घर वाले अगर दें आपको कि कुछ हेल्दी फूड खा लो, जूस पी लो, फ्रूट्स खा लो, उसमें अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है मोमोज अच्छे लगते हैं, बर्गर, चाउमीन, पिज्ज़ा, ये वो, कोका कोला, पेप्सी। अब थोड़ी देर के लिए जो हमारी जीभ का स्वाद है, द टेस्ट ऑफ आवर टंग, दैट इज़ वेरी फ्लीटिंग। आप स्टार्ट करके देखो, इफ़ यू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड, इफ़ यू स्टार्ट लिविंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, आप देखोगे उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारी सेंसेस के जो प्लेजर है ना, जो कॉन्टेक्ट्स हैं, उनकी वजह से हम सुख और दुख फील करते रहते हैं। ये तो चलता रहता है, कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी, कुछ नहीं लगेंगी, लेकिन जो सही है, व्हाट इज राइचुअस, जो सही है, क्या हमने वो किया या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका पढ़ाई में एक्सेल करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है? आपका अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना, सक्सेसफुल होना, अच्छे पैसे कमाना,
अपनी फैमिली के लिए, अपने कंट्री के लिए कुछ करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? या ये ज्यादा बढ़िया है कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट बने रहें, कि अपने आप कभी कुछ ना करें, माँ बाप के सिर पे बोझ बन जाएं आप? ये कोई अच्छी चीज है? सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए ना, फ्री होना चाहिए ना, फ्रीडम होनी चाहिए ना हमारे पास। तो फ्रीडम कहां से आएगी? वो फ्रीडम आती है नॉलेज से। तो वो कह रहे हैं कि ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, इन छोटी मोटी चीजों को तो झेलना पड़ेगा, है ना? तो जब आप इस क्लास में आए हो, मेरी क्लास में तो खास तौर से मैं मोबाइल छुड़वा देता हूं, आपका रखवा देता हूं। तो किसी को अगर गुस्सा आए तो ये ध्यान रखना, ये तो छोड़ना पड़ेगा बेटा कुछ टाइम के लिए। अगर कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा। यम ही न व्यथयन्त्येत पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृत तत्वाय कल्पते। द वाइज मैन टू whom pain and pleasure are alike and who is not tormented by those contexts becomes eligible for immortality. So if you want to seek immortality, that ultimate reality, so you will have to face these pleasure and pain alike. You should not be very elated in the pleasure and you should not be very depressed in the pain. You should be even minded. Okay? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. The unreal has no existence. This is such a beautiful shloka from Bhagavad Gita. The unreal has no existence. We sometimes we are very much worried about this will not happen. I mean, this will not happen. This will go away. This will disappear. Like Arjuna is lamenting for Bhishma and Drona that they will be killed. They will be no more. So sometimes we are very much worried, we are very much attached to some things, like in the world. They will go away, they will disappear. Like sometimes we are very fond of a friend, very much fond of a friend. And if he is not in your friendship anymore, so you feel depressed. Without you, how can I imagine my life? How can you go away? How can you leave me? How can you not be with me? Life is not possible. So sometimes we think like that, but Lord Krishna is saying the unreal has no existence. The real never ceases to be. The reality of both has thus been perceived by the seers of truth. जिसको रुकना है ना, वो रुकेगा, और जिसको जाना है वो किसी के रोकने से भी नहीं रुकेगा. तो जो ट्रू आपका फ्रेंडशिप है, जो ट्रू रिलेशनशिप है, वो अनकंडीशनल होगा. जैसे द लव ऑफ योर पेरेंट्स टूवर्ड्स यू, स्पेशली योर मदर. योर मदर्स लव फॉर यू इज दैट अनकंडीशनल लव. That will never disappear. Even if you are a very good person or you are not so good, even then the mother will love you equally. So because that is real. But sometimes we prefer our friends' love over mother's love. We leave sometimes our mother, our parents, for the sake of our friends. And those friends are only, they are with you as long as you are behaving in their own way, behaving according to them. If you are not behaving like them, if you are not behaving pleasing behavior towards them, they will immediately, they can go away. Yesterday only I saw a news. A lady, a woman wanted a divorce, filed a divorce just because his husband was not bathing every day. रोज नहीं नहाता था, इसलिए उसने कहा कि इसको मैं डाइवोर्स फाइल कर रही हूं, तुम रोज नहाते नहीं हो. मतलब सिर्फ इतनी सी बात पे. कोई ऐसा होता है कि बोले खर्राटे बहुत लेता है, स्नोरिंग बहुत करता है, इसलिए डाइवोर्स फाइल कर देते हैं लोग. ये कैसे रिलेशनशिप है ना? आज तुम बहुत अच्छे लगते हो, 4 दिन बाद कोई दूसरा थोड़ा ज्यादा अच्छा लगने लगा तो आज तुम्हें छोड़ देंगे फिर. तो ये अनरियल चीजें हैं सब.
The real love in the world, very rare. The possibility of real love is though very rare, but you can take the example of mother's love, your parents' love, कि वो अनकंडीशनल होता है, उनको कोई ऐसा नहीं कि उनके लिए आप कुछ करोगे, आप बदले में उनको कुछ दोगे तभी वो आपको प्यार करेंगे, ऐसा नहीं। तो ये श्लोक बहुत अच्छा है। ये क्या कहता है कि दुनिया में जो सच है ना वो कभी भी खत्म नहीं होता, और जो खत्म होता हुआ दिखता है वो कभी भी होता ही नहीं। इसलिए दुख करने की, शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू लैमेंट फॉर एनीथिंग विच इज डिसअपियर्ड, बिकॉज whatever is disappearing is actually not there. That is Maya. So this is the concept of Bhagavad Gita also, Maya. This whole world is Maya. It is always changing. It does not remain the same always. And when we are bound, when we are deluded with that Maya, there starts our bondage. So Lord Krishna is saying, do not be a slave to Maya. What is the owner of Maya? Who owns Maya? Who is the master of Maya? That ultimate reality which has been represented here as Lord Krishna himself. वो भगवान जिसको हम कहते हैं, जिसको भगवान कोई भी नाम दे सकते हैं, तो वो जो भगवान है वो माया का स्वामी है, the owner of this world, the master of the world. So you should be meditating upon that owner of the world, not upon the world. दुनिया की चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं तो फिर हम बहुत ज़्यादा बॉन्डेज क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए। और अगर आप अपने, मैं बहुत प्रैक्टिकली अगर मैं कहूँ तो अपने राइचुअसनेस पे अगर आप फोकस करें, जैसे दोस्तों के ऊपर जिसकी खुशी डिपेंड होती है कि मेरे दोस्त करेंगे तो मैं करूँगी या मैं करूँगा, और वो अगर ऐसा करेंगे तो ही मैं खुश होऊंगा या होऊंगी, तो वो इंसान कितने दिन तक खुश रह लेगा? वो तो स्लेव हो गया है, वो तो दूसरों पर गुलाम हो गया है, वो कि दूसरों के भरोसे जी रहा है। तो फिर कैसे जीना है? अपने अपने भरोसे जीना है। भगवत गीता टॉक्स अबाउट अ ग्रैंड लाइफ, द लाइफ ऑफ इंटेग्रिटी। आपकी होनी चाहिए कुछ पहचान, आपका होना चाहिए कुछ जज्बा, अपने टारगेट को, अपने गोल को, अपनी लाइफ को जिस मुकाम तक आपको ले जाना है वो मुकाम आपको हासिल करना है। दोस्त हैं उनसे अच्छी बात है, उनसे ऐसा नहीं है कि भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि भाई दोस्तों को भगा दो या दोस्तों को जो है दूर कर दो अपने से। ठीक है, एक लिमिट में सब चीज़ों, सबके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। यू ऑल शुड बी वेल बिहेव्ड, यू शुड बिहेव पोलाइटली, लविंगली, केयरफुली, बट उन पर डिपेंडेंट नहीं होना है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि द्रोण है, भीष्म थे, जब तक थे तब तक थे, अभी बिकॉज ऑफ द कोर्स ऑफ ड्यूटी, बिकॉज ऑफ द कोर्स ऑफ लाइफ, दे आर अगेंस्ट यू दिस टाइम, दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन द बैटल फील्ड, सो इट इज देयर डेस्टिनी, दे हैव टू बी किल्ड। बाद में तो भगवान ये भी कहते हैं कि तू नहीं मारेगा उन्हें तो मैं मार दूंगा, क्योंकि वो अधर्म के साथ खड़े हुए हैं तो मरना तो पड़ेगा उन्हें। तो ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है वहां पे, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। भगवान कहते हैं कि तुझे तो मैं निमित्त बना रहा हूं, बस यू आर जस्ट अ मीडियम। ऐसा नहीं है कि तेरे नहीं करने से चीजें नहीं होंगी, ये तू युद्ध नहीं लड़ेगा तो ये जिंदा बच जाएंगे, मरेंगे तो जरूर ये, क्योंकि इन्होंने जो पाप किए हैं या जिस पाप को इन्होंने सपोर्ट किया है ये डिजर्व करते हैं डेथ, इसलिए इन्हें मैं मारूंगा जरूर, बट तुम्हें मैं मीडियम बना रहा हूं। तो अपने ऊपर उस चीज को न लेते हुए और अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हुए तुम अपना कर्म करो। एंड व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ अर्जुन? द ड्यूटी वाज टू फाइट, बिकॉज ही वाज अ सोल्जर, ही वाज अ वॉरियर। सो एज अ वॉरियर यू शुड डू योर ड्यूटी। धर्म की हानि होती है। तो सर ये जो श्लोक है और ये श्लोक है ये आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि एक तरफ भगवान ये कह रहे हैं, एक तरफ भगवान ये कह रहे हैं कि जब जब अधर्म का बनेगा तो मैं आऊंगा, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अगर द्रोणाचार्य, गुरु द्रोण वो
हाँ, वो स्लाइटली कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा वैसा, क्योंकि एक तो जो उनके जन्म, हालांकि इसमें एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन या बड़ा एक कंट्रोवर्सी ये भी होती है, कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि भगवान जन्म ले नहीं सकता। कैसे भगवान जन्म कैसे लेगा, वो तो जब पूरी दुनिया का स्वामी है वो इंसान की फॉर्म में कैसे आएगा। तो उस पर भी कुछ लोगों का डाउट है। और रही बात ये कि धर्म की स्थापना के लिए मैं आऊँगा, तो जिसका कर्म है करना तो उसे ही है। वॉर तो अर्जुन का है वो, लेकिन भगवान आए हैं उसको उसका कर्तव्य याद दिलाने के लिए। ये एक सिंबॉलिक स्टोरी है अगर देखा जाए तो, कि भगवान कभी भी तुम्हारे लिए खुद आगे काम नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी बुद्धि के अंदर जो विवेक है, जो प्योरिटी है, आपकी बुद्धि को ही वो बढ़ा देंगे, आपकी बुद्धि को प्रकाशमान कर देंगे। ही विल एनलाइटन यू एंड देन यू विल सी व्हाट टू डू, सो यू विल गेट इनसाइट फ्रॉम देयर। सो भगवान कृष्ण जो है वो खुद नहीं करेंगे वो चीज़, वो अर्जुन से करवा रहे हैं, क्योंकि काम तो अर्जुन का है। तो वो उसका एक मीनिंग ये है कि हर एक युग में इंसान के अंदर वो जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है वो कहीं ना कहीं बाहर निकलती है। जैसे हम अगर अपने देश में महापुरुषों को देखें, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए क्या किया, फांसी पे चढ़े या अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, जैसे सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान। तो ये सब लोग कौन थे, ये उन्होंने एक चेतना थी उनके अंदर एक विजन था, इनसाइट था कि ये जो हमारे ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, हमारे ऊपर जो टॉर्मेंट कर रहे हैं अंग्रेज, उनको हटाना है। उसके पहले 200 साल तक नहीं हुई वो चीज़, उसके पहले लोग बर्दाश्त करते रहे, लेकिन एक टाइम के बाद वो डिवाइन इंटरवेंशन कहीं ना कहीं होता है कि लोगों के मन में वो भगवान की चेतना आ जाती है। तो वो उसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि वो भगवान, जब भी धर्म की हानि होती है, जब तक अच्छे लोगों का नुकसान होना शुरू हो जाता है और बुरे लोग बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए भगवान इंटरवीन करते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट है वो। जो गुरु द्रोण थे, गुरु द्रोण को आपको पता है वो एक था कि हाथी का नाम लेके कृष्ण जी ने थोड़ा छल कपट किया था और दुर्योधन के साथ भी किया था। तो क्या कर्म इतना जरूरी है कि उसके लिए छल कपट भी कर ले? पहला जो सवाल है कि कौरव जो है वो स्वर्ग चले गए ज़्यादातर, और इनमें पांडवों में इसको युधिष्ठिर को छोड़ के बाकी नहीं गए। तो कुछ चीज़ें माइथोलॉजी हैं, उसका कुछ लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं। एक बात फॉर श्योर मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ वैदिक लिटरेचर और इंडियन फिलॉसफी, कि जिसने जो कर्म किया है वो कर्म उसको भुगतना पड़ता है। कोई अपने किए हुए कर्म से बच नहीं सकता। स्वर्ग नरक की जो कल्पना है वो कल्पना ये है कि तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें ज़्यादा सुख मिलेगा। अगर तुम किसी के लिए अच्छा करोगे, किसी को अच्छा कुछ करोगे तो ज़्यादा सुख मिलेगा, और किसी को बुरा करोगे, किसी को परेशान करोगे, किसी को तड़पाओगे तो तुम्हें भी दुख मिलेगा। ये एक लॉ ऑफ कर्मा है। तो अगर कौरवों को स्वर्ग मिल गया, उसमें एक तो कुछ लोग ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण, जैसे रावण के लिए भी बोलते हैं कि राम जी ने मारा था इसलिए उसको स्वर्ग मिला होगा, मुक्त हो गया। तो वो तो एक अलग डिवोशनल लेवल पे चीज़ें लोग अपने हिसाब से प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन अगर उन्हें स्वर्ग मिला भी होगा कौरवों को, तो वो उनके इस जन्म के कर्मों से नहीं मिला होगा, उनके
पूर्व कर्मों का कोई फल आने वाला होगा, उससे मिला होगा। बुरा कर्म करके कोई स्वर्ग नहीं पा सकता, ये तो तय बात है। अगर कोई बुरा कर्म करेगा तो उसको उसका दुख भोगना पड़ेगा, उसी को नरक कहते हैं। और कोई अच्छा कर्म करेगा तो उसको उसका सुख मिलेगा, जिसको स्वर्ग कहते हैं। और बहुत बार तो लोग ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग वो बाहर नहीं है, इसी दुनिया में भी है। बहुत लोग जल्दी पा लेते हैं। आप बहुत मेहनत करो, आप अपनी लाइफ को एक सिस्टमेटिक तरीके से जीना शुरू करो और उस ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी लाइफ को जियो, तो आपको सक्सेस मिलती है, उसी को स्वर्ग कहते हैं। वो इस जन्म में भी मिल सकती है, अगर इस जन्म में नहीं मिली बाई चांस, तो कहते हैं कि अगले जन्म में अगर बहुत अच्छे कर्म है तो उसको स्वर्ग, फिर उसको एग्जेजरेट कर देते हैं कि बहुत हाई लेवल पे चला जाता है उसका सुख। तो ये चीज तो समझ लो, बिल्कुल कन्फर्म्ड है वैदिक फिलॉसफी में कि बुरे काम करके किसी को स्वर्ग नहीं मिल सकता, ठीक है। और अच्छा काम करके ही स्वर्ग मिलता है। अब उनको अगर मिला होगा तो वो उनका हो सकता है कभी का अकाउंट में बचा हुआ होगा, उनका अच्छा कर्म इसलिए मिल गया होगा। और बाकी पांडवों को नहीं मिला तो उनके अकाउंट में बुरे कर्म होंगे, जिनकी वजह से उनको नरक झेलना पड़ा होगा। तो एक तो ये चीज है। और दूसरा आपने कहा था वो द्रोण वाला जो था, तो अगर हम कहें कि भगवान कृष्ण जो हैं वो विष्णु जी के अवतार थे, भगवान थे, एक तो पर्सपेक्टिव ये है, तो सब भगवान की लीला थी, उसमें तो कुछ किसी का सवाल उठता ही नहीं है कि भगवान है वो कुछ भी कर सकते हैं और हर चीज जस्टिफाई कर देंगे वो, नंबर एक बात। और अगर हम ये माने कि वो भगवान नहीं थे, वो एक नॉर्मल, एक बहुत अच्छे राजा थे, एक बहुत विद्वान और बहुत वेलेंट वॉरियर थे, गैलेंट वॉरियर थे, और बहुत अच्छे आदमी थे, महापुरुष थे, तो उस कंडीशन में ये कह सकते हैं कि वो भगवान की जो स्ट्रैटेजी है कृष्ण की, वो कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम। जो मुझे जिस तरह से देखता है मैं उसी तरह से उसके साथ बिहेव करता हूं। तो जो जैसा डिजर्व करता है वो वैसा उसको कर देते, चूंकि वो अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, चूंकि वो अपने खुद के सुख के लिए वैसा नहीं कर रहे हैं, बट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया में अच्छे लोगों की रक्षा हो सके। इसलिए उन्होंने अर्जुन को तो बहाना उन्होंने बनाया, पांडवों को तो बहाना बनाया उन्होंने। एक्चुअली तो उस टाइम के जितने भी विलेन्स थे, खास तौर से साउथ एशिया के, भारत पूरा बहुत बड़ा था उस टाइम पे, तो उन सब विलेन्स को इकट्ठा करके मरवाया उन्होंने। दुर्योधन उसी तरह का व्यक्ति था, जयद्रथ उसी तरह का व्यक्ति था, जरासंध वैसा ही व्यक्ति था। तो ऐसे पापियों को उन्होंने उस महाभारत के वॉर में अलग अलग इवेंट में उनको मारने की उन्होंने प्लान करी, और अर्जुन को और पांडवों को तो केवल एक निमित्त उन्होंने बनाया। तो क्योंकि वो अगर वो ये काम करते अपने सुख के लिए तो फिर वो पाप है, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए वैसा करना वो फिर पाप और पुण्य की श्रेणी में नहीं आता है, अगर आप निष्काम भाव से करते हैं। जैसे उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे अगर बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर या कहीं भी आसाम या कहीं पर भी अगर दुश्मन देश के साथ हमारी लड़ाई हो रही है और हमारे जो सोल्जर हैं वो ये कहने लगे कि जो सामने दुश्मन जो खड़ा हुआ है इसकी फैमिली, इसके बच्चे, इनका क्या होगा, क्योंकि सोल्जर्स की फैमिली होती है और हमारे लिए तो दुश्मन है वो, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए तो वो बहुत, जैसा बिलविड हमारे पेरेंट्स होते हैं वैसा ही वो भी होगा। तो जब वो मरेगा तो उसके बच्चों को तो बहुत दुख होगा, उसके घर वालों को बहुत दुख होगा। तो अब ये सोच के हम उसको छोड़ दें तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो दुश्मन देश के अंदर घुस जाएगा। इसलिए जो सोल्जर्स हैं वो ये नहीं देखते कि इसके घर में माँ बाप हैं, भाई बहन कौन है, वो यहाँ आने से पहले शांति के समय सिविल सोसाइटी में आप देख सकते हो वो चीज, व्हेन यू आर ऑन द बॉर्डर वहां तो आपको मारना ही पड़ेगा, बस वही आपकी ड्यूटी है उस टाइम पे। तो इस सेंस में भी ये जो कर्तव्य की जो बात है, इस सेंस में भी इसको हम देखते हैं। हाँ जी सर, आपने उसकी बात करी, जो कर्ण था, कर्ण और अर्जुन सगे भाई थे, हाँ। एक ही कोख से जन्मे थे, कुंती से पहले, ठीक है। लेकिन नकुल और सहदेव आपको पता है वो कुंती की कोख से नहीं जन्मे थे। तो सर, कर्ण और अर्जुन तो भाई थे, फिर भी वो एक दूसरे के खिलाफ थे, और कर्ण की क्या गलती थी? कर्ण ने, अब अगर आप कह रहे हो कि भगवान की लीला है या फिर जिस तरीके से हम भगवान को
जमात में थे तो वो जो हंटर ने जो तीर मारा था वो उनके पैर पे क्यों लगा और फिर वो मतलब फिर कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? क्या ये भी लीला है? हाँ, वो अगर अगर लीला वाले पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो सब कुछ लीला है, उसमें तो कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं। भगवान अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं। अब लीला वाले पॉइंट ऑफ व्यू में तो कुछ सवाल उठता ही नहीं है, वो तो लीला हो गई उनकी बस। फिर उसमें कोई इफ बट नहीं है, उसमें फिर कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर हम उनको एक महापुरुष की तरह से देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो एक्चुअली उनका टारगेट क्या है। वो कहते हैं न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेशु किंचन नान वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि। वो बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि अर्जुन, मुझे इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको करने की जरूरत पड़े मुझे, मेरे पास सब कुछ है। एज ए किंग अगर आप देखें लॉर्ड कृष्णा को, भगवान कृष्ण को अगर आप देखें तो उनके पास द्वारिका है और उनके पास बड़े बड़े वेपन्स हैं, बड़ी सेना है और उनका बड़ा चार्म है। लोग मतलब डाई हार्ड फैन है उनके उस जमाने में। तो वो कह रहे हैं मुझे कोई किसी ग्लोरी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी धन की जरूरत नहीं है, तीनों लोकों में ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरे पास ना हो, लेकिन फिर भी मैं तेरे रथ पे बैठ के इस युद्ध को लड़ रहा हूं, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करना या कर्म करना, वर्त एव च कर्मणि, कर्म में ही मैं वर्तता हूं। मैं इवन सब कुछ पा चुका हूं लेकिन फिर भी अपने कर्म को मैं नहीं छोड़ता हूं। जैसे दुनिया में अगर कोई आपके ऊपर जुल्म करना शुरू करे और आप अपनी फिलॉसफी में ये मान लें कि ये जुल्म करेगा तो अपने आप भुगतेगा, क्या हो गया? चला लो, थोड़ी देर रुक जाओ, सर्दी गर्मी को सहन करना सीखो। तो कोई आपके ऊपर जुल्म करे, कोई अटैक करे, आपकी जान लेने की कोशिश करे और आप ये कह के छोड़ दें कि भगवान अपने आप देखेगा इसे, तो लाइफ तो नहीं चलेगी ऐसे। आपको रिटेलिएट तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मिटा देगा तुम्हें वो। तो सर्वाइवल तो जरूरी है। मेरे सर्वाइवल के लिए मैं दूसरों को मारूं ये ठीक नहीं है, बट मेरे सर्वाइवल के लिए तो लड़ना पड़ेगा मुझे। तो इसीलिए जो हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन सब के पास एक शस्त्र है हाथ में, वरदान भी है। एक हाथ से वो वरदान दे रहे हैं और दूसरे हाथ में उनके वेपन है। तो ये जैसा जिसका स्वभाव होता है उसी की दृष्टि से उसके साथ व्यवहार किया जाता है, ठीक है। तो कर्ण वाला भी केस ऐसा ही था। कर्ण वाकई में बहुत गजब का कैरेक्टर था। कर्ण का कैरेक्टर तो फेवरेट कैरेक्टर है ऑलमोस्ट सभी का महाभारत के अंदर। वो गजब की पर्सनालिटी थी उसकी, और सूर्य का पुत्र था वो कहते हैं। और वो इतना अभागा था बेचारा कि पैदा होते ही तो उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया, कर्ण को। और फिर जब वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास गया, धनुर्विद्या उसने सीखी परशुराम से, तो भगवान परशुराम को जब पता चला, उनको एक घटना हो गई कर्ण के साथ, उससे पता चला कि वो क्षत्रिय है। उसने बताया था कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मेरे जो पिताजी हैं वो तो रथ चलाते हैं, वो युद्ध लड़ने वाले नहीं हैं। क्षत्रिय माने युद्ध लड़ने वाले। तो उसके फादर जिसने उसको पाला था, फादर और मदर जो सूत पुत्र कहते थे कर्ण को, तो वो रथ चलाने वाला था, रथ हाँकने वाला था। तो उसने कहा कि मैं तो वॉरियर क्लास से नहीं हूँ, मैं तो ड्राइवर क्लास से हूँ, बट मुझे फिर भी सीखना है। तो परशुराम ने उसको सिखाया। और कहते हैं कि एक दिन ऐसा था कि वो परशुराम जो है वो कर्ण की गोद में सर रख के लेटे हुए थे और उस एक कीड़ा कोई आके, बिच्छू या कोई कीड़ा उसके पैर में, जांग में जो है वो घुसने लगा और काटने लगा। उसने सोचा अगर मैं हिलाऊंगा पैर तो गुरुजी की नींद खराब हो जाएगी, तो उसने पैर हिलाया नहीं और वो कीड़ा जो है वो पूरा अंदर तक चला गया। और उसका जो ब्लड निकला, वो ब्लड जब उनके कान पे लगा परशुराम के, तो परशुराम एकदम से जाग गए और उन्होंने कहा कि तू कौन है? उसने कहा कि मैं कर्ण हूँ। बोले किसका बेटा है तू? बोले मैं तो वो रथ चलाने वाले का बेटा हूँ। बोले तू रथ चलाने वाले का बेटा हो ही नहीं सकता, तेरे डीएनए में तो बहुत एंड्योरेंस है, मतलब तू तो फाइटर क्लास का आदमी है, तो तू तो किसी योद्धा का, क्षत्रिय का बेटा है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो उसी का बेटा हूँ। तो उन्होंने कहा तूने मेरे साथ झूठ बोला है, मेरे से ये विद्या सीखने के लिए अब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी ये विद्या जब तुझे जरूरत पड़ेगी तो काम नहीं आएगी। ये तो सीख तो लिया उसने सब कुछ, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी काम नहीं आया कुछ भी। उसके लास्ट मोमेंट पे भी वो बहुत हेल्पलेस होके मरा है। अब क्योंकि भगवान कृष्ण को वो जो लॉन्ग टर्म गोल था, जो ग्रेटर गोल था,
वो ग्रेटर गोल अचीव करना था, इसलिए उन्होंने वैसा किया कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ देके स्वयं अपनी मृत्यु का वर्ण किया था। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया था, तो वो डिसाइड था, उसके लिए पहले से डिसाइडेड था कि वो मरेगा, क्योंकि सामने तो कृष्ण है और वो जानता होगा अंदर कहीं ना कहीं, लेकिन वो इतना, क्योंकि उसके वो ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, तो वो जानता था कि वादा किया है दुर्योधन के साथ, पीछे तो नहीं हटूंगा, दुर्योधन ने मेरी हेल्प करी है तो इसलिए मैं लड़ूंगा तो जरूर। तो वो अपनी डेथ उसने खुद एक्सेप्ट करी। और ये चीज अगर भगवान कृष्ण या भगवान राम के संदर्भ में देखें, विभीषण रावण का भाई था, उसी कुल का था, लेकिन चूंकि वो उसका हृदय परिवर्तन हो गया तो उसको भगवान ने बचा छोड़ दिया। मतलब हालांकि वो राम जी की बात है, ये कृष्ण की बात है, लेकिन उसको एक कॉन्सेप्ट वही है कि अगर कोई आपकी शरण में आया, कोई मासूम है, कोई हार मान चुका, उसको नहीं मारते थे। लेकिन जो कोई कह रहा है कि मैं तो लड़ूंगा, बोले तू अधर्म के साथ है, बोले कुछ नहीं मैं तो लड़ूंगा, तो फिर तो मरेगा वो। तो ये कर्ण के मरने की ये कहानी है। हाँ, कॉग्निटिव क्या थी, क्या क्या मीनिंग है होगा? हाँ, हाँ, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ दिया, उनकी प्रतिज्ञा भी तो थी, प्रतिज्ञा भी धर्म के ऊपर है, नहीं, वो तो इंसान के अपने चुनने के ऊपर है, आप क्या चुनते हो। तो भीष्म का और भीष्म का, द्रोण का और कर्ण का, इन तीनों के कैरेक्टर में वही एक दाग था कि वो जो सिंहासन के साथ उनकी लाइबिलिटी थी और सिंहासन के वो गुलाम थे। अब कोई जानबूझ के गुलाम बन जाता है, कटप्पा वाला जो आपने देखी होगी बाहुबली, ऐसे ही थे वो, कटप्पा ही थे वो महाभारत के। तो जानबूझ के वो गुलाम बने हुए थे सिंहासन के, उनके आंखों के सामने उनके घर की बहू और उसके वस्त्र उतारने की कोशिश कर रहा है और वो आंखें नीचे करके देख रहे हैं। भगवान तो एक जगह पे कहते भी हैं शायद, भगवान कृष्ण, कि वो अकेला अपराध इतना काफी है जिसके लिए मैं इन्हें एक सेकंड नहीं लगाऊंगा, इन्हें सबको मार दूंगा मैं। तो अब आपका अपना वचन इतना कीमती है, आपका अपना प्राइड इतना कीमती है कि आप उसके लिए मृत्यु को भी स्वीकार कर सकते हो, तो मृत्यु को स्वीकार करो फिर। तो भीष्म ने भी, द्रोण ने भी और कर्ण ने भी मृत्यु को स्वीकार किया, क्योंकि उनका अपना ईगो, अपना प्राइड था। तो इसीलिए टाइम टाइम पे भगवान कृष्ण ने उनकी बहुत अप्रिसिएशन भी करी है, बहुत तारीफ भी करी है। कर्ण की बहुत तारीफ करी उन्होंने, वो गजब कैरेक्टर था वो। भीष्म उससे भी ज्यादा गजब था। बाद में कहते हैं जब भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए तो भगवान ने युधिष्ठिर को बोला कि तुम राजा बनने वाले हो, भीष्म से कुछ सीख के आओ। तो बाद में युधिष्ठिर जाते हैं भीष्म के पास और भीष्म उसको ज्ञान देते हैं राजधर्म का, राजनीति क्या होती है, क्या तौर तरीके हैं। तो मरना जीना उस दौर में, और आज भी विद्वान लोगों के लिए कोई बड़े मायने, सरदार भगत सिंह की बात ले लो आप, वो चाहते तो जिंदा बच सकते थे, कोई मर्सी पिटीशन लिख देते, वो जिंदा रह सकते थे, लेकिन उस आदमी को जुनून था, बोले इस गलत सिस्टम के साथ तो जिंदा नहीं रहूंगा, मैं इसको चैलेंज करूंगा, और इसको चैलेंज करने के लिए अगर मुझे अपनी जिंदगी दांव पे लगानी पड़े तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मर जाऊंगा। अब सोचो कभी भगत सिंह के बारे में कि क्या किया, जो उनके सपने थे वो हुआ तो कुछ भी नहीं। आजादी मिलने के बाद भी भगत सिंह के सपनों का भारत तो नहीं बना ना, लेकिन उस आदमी के अंदर जज्बा था, तो उसने कहा कि मैं नहीं रह सकता इस घटियापन के साथ। आपको पता है जब लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के टाइम पे उनके सिर में लाठी पड़ गई थी, लाठी चार्ज हुआ था, उसमें लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, बड़े पंजाब के बड़े लीडर थे वो, ठीक है। तो वो जब डेथ हो गई उनकी, और उनका जो फ्यूनरल था, जब उनकी अंतिम संस्कार हो रहा था, क्रीमेशन, तो उस टाइम पे उनकी वाइफ ने बोला, लाला लाजपत राय की वाइफ ने बोला कि क्या हिंदुस्तान में मर्द पैदा होने बंद हो गए, कि उन्होंने लाला जी को इतनी बेरहमी से मार दिया, इतने रिस्पेक्टेड आदमी थे वो हमारे फ्रीडम मूवमेंट के, और उनको लाठियों से मार दिया, और तुम्हारे किसी के अंदर इतनी मर्दानगी नहीं बची कि उसका बदला ले सके। तो ये सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और उनके साथी कई सारे थे वहां पे मौजूद, उन्होंने कहा कि ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अब उसको क्या कहेंगे आप, वो प्राइड है उनका
कि मैं मरना स्वीकार करूंगा लेकिन अपमान स्वीकार नहीं करूंगा। तो उनका कैरेक्टर अद्भुत अपना कैरेक्टर होता है। ऐसे भीष्म, द्रोण और कर्ण का कैरेक्टर था, लेकिन वो खुद चुना था उन्होंने। अब हम सब लोग तो भीष्म, द्रोण, कर्ण और सरदार भगत सिंह नहीं है। तो हमारे लिए भगवत गीता में क्या मैसेज है? हमारे लिए मैसेज ये है कि जो कर्तव्य है उसको करना चाहिए। हाँ जी, नहीं वो तो कुछ नहीं है, बट अगर सबको ठीक लग रहा हो तो मैं तो कंटिन्यू कर सकता हूँ। हाँ जी, हाँ, वो तो द्रोण ने मांगा ना, वो भगवान कृष्ण ने थोड़ी मांगा। मैं तो यहाँ भगवान कृष्ण का एडवोकेट हूँ, द्रोण का नहीं हूँ। नहीं, अब लीला वाली कॉन्सेप्ट तो अलग है। फिर लीला वाले में तो सवाल है ही नहीं, वो तो समझ में आएगी नहीं। फिर अगर आप उनको महापुरुष की तरह से देखोगे तो ही उस पर सवाल उठ सकते हैं। नहीं, वो तो द्रोण ने मांगा ना, भगवान ने थोड़ी मांगा। वो तो द्रोण का कैरेक्टर था, शायद उसकी भी सजा मिली हो उसको। मतलब उसने अन्याय कर दिया एक डिसाइपल के साथ, just because of the allegiance to the throne, because he was appointed as a royal teacher and he didn't want anybody to supersede Arjun, so he asked for the thumb, the right hand thumb. So this was immoral. This was immoral on the part of a teacher कि अपने किसी भी डिसाइपल के साथ वो धोखा करे। अब उसने किया तो शायद उसकी भी सजा कहीं ना कहीं काउंट हुई होगी। हाँ जी, आप इसको पूछ रहे थे कुछ? अब वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ तो वो तो द्रोणाचार्य का कैरेक्टर था ना। उनकी इंटेग्रिटी थ्रोन के साथ थी, उनका एलिजियंस थ्रोन के साथ था, माने राज सिंहासन के साथ, और वो एज ए रॉयल टीचर अपॉइंट हुए थे। तो वो कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिविटी थी उस सम पार्ट, और उसका उन्होंने नुकसान भी उठाया होगा। तो वो तो उनका कैरेक्टर। मैं भगवान कृष्ण को एक महापुरुष की तरह से देख रहा हूं, तो उनकी जो बातें हैं वो बहुत, ऐसा नहीं है कि उनकी तारीफ में ये बातें हो रही है, एक्चुअली इटर्नल बातें हैं। भगवत गीता में जो मैसेज है, जो विजन है, वो इंडियन फिलॉसफी का सार है, एक्सट्रैक्ट है कि तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा, और जब तुम अटैच होकर करते हो तो बाउंड हो जाते हो, और नहीं करते हो तो भी तुम बाउंड होते हो। किसके? तुम बाउंड हो जाते हो अपने बिस्तर के। एक आदमी वो है जो उठता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं, तो लेटे लेटे डिप्रेस हो जाता है। कई बार उसको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो जाते हैं। आजकल लोगों को बहुत ज्यादा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वर्कआउट नहीं करते, है ना। और जो वर्कआउट करते हैं, 1-2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, जो वर्कआउट करते हैं वो किसी को दिखाने के लिए करते हैं, कि कुछ पाने के लिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए, है ना। तो देर सवेर वो भी डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि कई बार जिसको हम दिखाने के लिए कर रहे हैं वो देख नहीं रहा है। वो देख नहीं रहा है तो बहुत अंदर चुभता है तो फिर इंसान परेशान हो जाता है। अभी आपने वो जो फिल्म हीरो था अभी कोविड के टाइम पे जिसने सुसाइड किया था, सुशांत से बढ़िया लाइफ किसी की क्या होगी? स्टार बन गया वो, उसको भाई क्या जरूरत पड़ गई सुसाइड करने की? यानी करने के बाद अटैच हो जाते हैं ना, तो भी फंसते हैं हम, और कुछ नहीं करते हैं तो भी फंसते हैं। इसलिए भगवत गीता क्या कह रही है? समझदारी से कर्म करो, कुशल कर्म करो, करो जरूर, लेकिन उसमें फंसो मत। हाँ, तुम्हारी जो अटैचमेंट है वो अकर्मण्यता में, इनएक्शन में भी आपकी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। करना जरूर है, लेकिन उस करे हुए के फल में आपकी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। फिर मतलब ये एक गजब का लाइफ स्टाइल है कि आप फिर हेल्दी रहते हो। जो अनअटैच्ड वे में आदमी अपना काम करता रहता है ना, वो हेल्दी रहता है, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से। और अनहेल्दी वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो वर्कआउट कर रहा है रेगुलरली, सारी चीजें ठीक से कर रहा है, जो सिस्टम है उसको फॉलो कर रहा है। तो भगवत गीता टॉक्स अबाउट दैट लाइफ कि आप एक सिस्टम से लाइफ को जियो, और बहुत खूबसूरत वो सब बातें हैं। बाकी बात अगले लेक्चर में हम करेंगे, आज तो काफ़ी सारा टाइम चला गया इसमें। चलिए, थैंक यू सो मच। इसको बंद कर दे भाई। एक बार शांति मंत्र के साथ कक्षा का विसर्जन करेंगे, और अटेंडेंस के लिए, हाँ इसको बंद कर दो।